another episode where we are picking up very important and crucial economics optional paper 2 questions. But mind it, these questions are framing the whole mindset for even general studies and even for anyone who wants to know how India's development took place. They are very crucial, very, very enlightening discussion, reflecting positive ideas for what we can write in the examination. And it is a long drawn process, but we are just sharing, the outcome. This is the one aspect of it. That's what we are trying to do. Write on dichotomy of development and urban bias in Indian economy. So this question, it is coming up in 2013, if I'm not wrong. Am I right? So this question is actually reflecting again the first 2 decades, or you can say first 2 decades and a half of liberalization. Because prior to liberalization, there was definitely a bias was there. People always believed that the funding was also going to big cities, big places, and there was lopsided development. So let's see, uh, because the question is asking dichotomy only. It is not asking to write a critical note. It is not asking that whether it is not happening. So let's see. So dichotomy of development means the negative externalities as an outcome. One of these is urban bias as identified by Niti Aayog working paper. So Niti Aayog we are bringing because we are writing in the present times. It is reflected from the fact that as of 2025, 30% of India lives in urban areas and contribute to 70% of GDP as stated by ASSOCHAM report. Dichotomy of development reflects India is the fifth largest economy in the world, yet top 5 most polluted cities are present in India with Delhi on top. I think this is a wonderful example, very on point. Widening income inequality with growth and development. OECD report on high net worth individuals 2025 generated 85,000 HNI with over 10 million in India. Very true, because urban bias is in the form of concentration of capex. GIFT City, Gujarat, preferred place to live and work in urban cities and towns have changed. Pattern of urbanization, center of industrialization in Ahmedabad, Ranchi, and Bengaluru. So I think the point number 3 is a very big takeaway, and the structure is also good. The focus recently has shifted towards 100 industrial parks in rural areas and close proximity, as said by Budget 25-26. Atmanirbhar rural economy, one district, one product scheme, women empowerment, Lakpati Didis, and agri startup growth. I think very comprehensive and very very legitimate approach we have taken. And if you go back to the question again, because in the conclusion part, it is asking us to say write dichotomy on development and urban bias in Indian economy. So when we are concluding it, because we have given very important and crucial points over here. So one line uh, on way ahead, the focus uh, recently has shifted towards this is I think this also cannot be taken away. So nothing to change as such, but then one point on conclusion would have been amazing. Okay. Moving to the next question, what is chronic capitalism? Very important, very open-ended, very smart. It depends on your interpretation. It depends on your intent. It depends on your intention along with your interpretation, and it depends on your नियत जिसको हम कहते हैं कि आप कैसी नियत कैसी है आपकी, वैसा आंसर आएगा. How it compromises economic and social justice issues. Economic and social justice issues it is saying. So we have to explain the same. Chronic capitalism can be defined as a situation of overlap of executive and the capitalist class for vested interests. Yes, definitely it is executive. So both permanent and you can say political executive, both are responsible for this. Overlooking the principles of good governance. I think very good definition we have given. And we would have even scored 0.25 marks more over here if we would have started World Bank states according to Transparency International, according to UNCTAD, according to UN Agency Against Corruption, according to Financial Action Task Force. Everybody is giving something or something or not. So that would have given us little bit one more edge. Elements: intentional support and endorsement of business group by political administration, bypassing environment assessment reports and citizen consultation. For example, 100 acres of Hyderabad land disposition reversed by Supreme Court. I will speak about this example because this example is a good one. But then the land was of the government, but it was not used, and so it is alleged. You could have written as alleged because it is not a complete case of chronic capitalism. It is an alleged thing. So favoritism over objectivity. So we can always write when we are not sure. You always write alleged. For example, privatization of Indian airports as alleged by opposition parties. Alleged. जी So सर. that ways we are just stating what is, तो हम अगर ऐसे लिख देते 100 acres of either, तो हमें फिर it is not exactly true because High Court is also saying that कि आपने जो पेड़ काटे
आपके पास प्लान ऑफ एक्शन क्या था कि उनको रीप्लांट कैसे करने जा रहे, ये पूछा, इसका जी। कोई जवाब है नहीं, वो वो वाली बात है। हम्म। कॉम्प्रोमाइजिंग इफेक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोशल जस्टिस, ओवरलुक्स अकाउंटेबिलिटी एंड बाईपासिंग रूल ऑफ लॉ। सो अब ये भी, लेकिन जो हमने एग्जांपल दिया तेलंगाना फैक्ट्री ब्लास्ट का, तो ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म का एग्जांपल नहीं है, ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी का नेग्लिजेंस है। आप क्रॉनिक कैपिटलिज्म का एग्जांपल दीजिए, जैसे आप रशिया का एग्जांपल दे दो, रशियन ऑलिगार्क का एग्जांपल दे दो, वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म का है कि रशिया वॉर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन रशियन ऑलिगार्क बाहर जो है क्लब खरीद रहे हैं। या ललित मोदी का भी एग्जांपल दे दो, जिन्होंने आईपीएल बनाया था, वो आईपीएल को वो फ्रॉड करके भाग गए, ठीक है, वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म हो सकता है जब उन्होंने कोई चीज यहाँ पे की पब्लिक उससे। तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म में इवन विजय माल्या जैसे आप आ सकता है कि भाई क्रॉनिक कैपिटलिस्ट, ऐसे करके हो सकता है, पर ये नहीं एग्जाम्पल आएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल हमें concentration of wealth and power in few hands. Now 500 Adani ports along Indian, we cannot write this because Adani is actually pursuing the developmental agenda which any developmental country goes through. Powerful countries and developed countries will always claim that the development countries are not following due process. They are having, you know, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये चोरी है, लेकिन वो कैसे डेवलप बने? तो अडानी का हम नहीं ले सकते। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर इन फ्यू हैंड्स का आप कह सकते हो, इसका एग्जांपल आप दीजिए, लेकिन ये मत दो आप दो कि सुप्रीम कोर्ट निक्सिंग और सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टिंग certain infrastructure projects when given to only one company, वो हो गया, बस इतना सा लिख के छोड़ दो, क्योंकि इतने सारे एग्जांपल तो है ही ना जी। भाई। जब आप पब्लिक बड़े बड़े प्रोजेक्ट किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दे सकते हो, वो क्रॉनिक कैपिटल, जैसे कि मान लो, और एक और एग्जांपल हम यहाँ दे सकते हैं, आप दो कि इन द अर्स्टवल इलेक्टोरल बॉन्ड्स, certain companies they paid to a particular political party and they got big tender projects, बस खत्म। जी। हम्म। हंसना नहीं है हमें, तो ये तो बहुत गलत हो गया, ये हमारे आंसर को खत्म कर देगा। हम्म। वेलफेयर बिकम सेकेंडरी, वेदांता प्रोजेक्ट विथड्रॉन फ्रॉम ओडिशा ट्राइबल बेल्ट। सो वेलफेयर बिकम सेकेंडरी इज एग्रीड। इस पे भी मैं डिबेट करना चाहूंगा, मतलब हमें जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बोल के, जैसे 2G स्कैम था, एक हम्म। बात कह रहा हूँ, किसी को तो दिया गया था ना 2G स्कैम, 3G जी। स्कैम, वो बोलो, लेकिन जो जो एक्टिव इंडस्ट्रियल प्लेयर्स हैं, वो जब तक सुप्रीम कोर्ट उनको थप्पड़ मार के ठीक नहीं करता, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, जैसे अभी अभी बोला था वो JSW स्टील वाला कि भाई वापस ले जा, जी। तो वो भी वो भी इनडायरेक्टली है क्रॉनिक कैपिटलिज्म, डायरेक्टली वो भी नहीं, वो भी तो पैसे को घुमा के कर रहा था ना, वो भी हम्म। मतलब जो जहां पे दिखाना था वो नहीं दिखाया था, बुक्स मेंटेन नहीं की थी, तो वही है क्रॉनिक कैपिटलिज्म। हाँ। मतलब आप कैपिटलिज्म आप कर रहे हो, लेकिन आप जो है, मतलब कैपिटलिज्म बिकम्स द, इट इज नॉट ए मीडियम, कैपिटलिज्म बिकम्स एंड प्रोडक्ट। जैसे इसका एग्जांपल एक और हम दे देते हैं, जैसे आप एग्जांपल दीजिए, जैसे कि सर्टेन कंपनी इज क्रिएटिंग फॉर एग्जांपल ब्रिजेस इन अ सर्टेन स्टेट, हम्म। और वो ब्रिज 6 महीने में ही गिर जाते हैं, जी। तो सरकार ने तो, हमारा पैसा तो चला गया ना, टैक्स पेयर मनी तो चला गया हम्म। है। तो ये एक सिम्टम है, ये इनडायरेक्ट सिम्टम हो गया। जैसे अभी गुड़गांव की अगर बात करें, गुरुग्राम की, अगर आप बोलते पूरा भर गया, हम्म। लेकिन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव है, वो हर साल टेंडर दे रही है ना, हर साल उसको बजट मिल रहा है, हर साल वो 500 करोड़ 1000 करोड़ ले रही है, हम्म। वो कहाँ जा रहा है? वो कागज पे तो सब घूम रहा है, तो वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म हुआ। हमें सबमरीन टूरिज्म एंड ओशियन बेड, नो लॉन्गर सबमरीन टूरिज्म एंड ओशियन बेड एक्सप्लोरेशन impacting marine life, ये पॉइंट नंबर 4 also we have to state in a different way, we cannot write like this। चाइना का एग्जांपल दे दो, चाइना का एग्जांपल दो, चाइना परसुइंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मेकिंग कंट्रीज इनटू डेट, ठीक है, हम्म। तो इनडायरेक्टली तो कैपिटल, इट इज स्क्वीजिंग आउट ना। अगर आपको ये, मैं मुझे इससे ध्यान आया जो आप ये सबमरीन वाला बोल रहे हैं, इससे हम जी। ऐसा कर सकते हैं। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज गुड एग्जांपल, टैक्स अवॉइडेंस मिसयूज जनरेटिंग पैरेलल इकोनॉमी, आई थिंक डिमोनेटाइजेशन 2016 हम एग्जांपल नहीं दे सकते, बिकॉज़ द गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट ओनली डिड इट। व्हाट तो यू कैन से, कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है ना वो, वेलफेयर पर्सपेक्टिव से, मतलब पॉजिटिव स्पिरिट में, टू स्टॉप लॉस ऑफ रेवेन्यू डिमोनेटाइजेशन किया। अच्छा लॉस तो नहीं, टू स्टॉप लॉस फिर लिखना चाहिए था ना, आपने लिखा लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, मतलब इट इज, व्हेन यू रीड इन अ फ्लो वी कैन गेट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। तो बस इतना सा, ठीक है, नो वरीज। 100% डिजिटाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस, ई टेंडर्स बिडिंग, देखो वही बातें लेके आए ना, फ्रेमवर्क एंड रूल्स फॉर गिग इकोनॉमी, संविधान
संविधान स्कीम टू रिजॉल्व टैक्स डिस्प्यूट्स, और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड भी है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी खुल के आ रहा है। और इवन एक और एग्जांपल आपको यहाँ देना चाहिए था कि कैबिनेट सेक्रेटरीट इज मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बस आप लिख देते कि कैबिनेट सेक्रेटरीट कमिंग अप विद अ प्लान दैट नो प्रोजेक्ट पेंडिंग इन द मिनिस्टर्स ऑफिस फॉर मोर देन अ स्टिपुलेटेड टाइम। जी। इससे कैपिटलिज्म, क्रॉनिक कैपिटलिज्म कम होगा। हम्म So I think let's see, we are moving ahead. What is the present disinvestment policy of GOI? What modifications can be introduced in order to make it fruit bearing? A wonderful question, completely checking one's understanding. Very broad and smart question. Disinvestment is based, policy is based on the principles of maximum government, minimum governance. And in that also, one we can say over here only, I think this is a good start you did. But the PowerPoint that you could have given is, monetization of those assets which are no longer remunerative, which are actually not an asset, but because they are liability for the government. असल में वो है डिसइन्वेस्टमेंट। तो मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस का प्रिंसिपल है, बट द एक्चुअल रीजन इज दिस। So government has no business to do business in divesting loss-making PSUs. आपने MTNL का एग्जांपल दिया। Strategic decision government maintains 51% and less stake, ठीक बात, चलो ये भी मान लिया। दीपम spurring ahead the process with identification and feasibility reports, promote corporate governance standard. PPP is on one of the ways. NHI construction through BOT model, sustainability raising sources of fund budget, ठीक है। For fiscal consolidation, 24-25 cycle raise 2,60,000 crore. Proposed modifications, integration with IBC 2016 to quickly resolve pending disputes and fulfill timely distribution. Mergers and amalgamation where feasible to ensure job security, for example, Indian, बहुत सही बोला। Maintaining a fine balance of mixed economy, the USP plus Indian, बहुत अच्छा point है। Complete investment is also not the way forward due to nature of the Indian capitalist model that is aligned with the Sarvodaya model of Gandhi. I think second part of the answer is amazing, more amazing. In the first part, we have to bring the present government, national monetization pipeline. There is a whole project of that sort. एक national monetization pipeline है। उस जी। national monetization pipeline के अंदर सरकार ने 1 2 3 4 5 साल के कुछ टारगेट रखे हैं। हर साल के बजट के अंदर भी कुछ टारगेट है कि हमें इतना फंड यहाँ से लेना है। वो भी क्यों लेना है? बिकॉज दे वांट टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, वही कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर क्रिएटिंग। आफ्टर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम श्योर government is going to come after human infrastructure, human resource. So first we are going after physical, as you can see, through highways, through long pending projects, through Vadhavan, through Vizhinjam, through Katra, that rail link, through Vande Bharat and so forth. तो आपको डिसइन्वेस्टमेंट में वो लेके आना है कि कैसे R&D में। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा आ सकता था, बाकी आई थिंक सेकंड पार्ट इज वेरी वेल रिटन। Indian planning structure and system still largely remain in favor of a centralized nature of economy, of planning. 73rd and 74th Constitutional Amendment have hardly brought about any change in reality of the nature of Indian planning process. Critically evaluate कर रहा है, तो यानी हमें फंसाने की बात है, ट्रैप करने की बात है। हमें बहुत खूबसूरत छोटे छोटे एग्जाम्पल लाने हैं। लेट्स सी, क्या हम सिक्किम को या मध्य प्रदेश को या हम इवन झारखंड के ट्राइबल्स का या कुछ भी हम अगर लेके आते हैं, या हम अगर हम वो पेशा की भी अगर हम बात करते हैं कि पंचायती राज को शेड्यूल एरिया में एक्सटेंड करके हमने क्या किया, तो आई थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए। बट लेट्स सी, द 21st century planning is founded on the basis of indicative and performance based planning, which saw the cusp with the establishment of the, I think, wonderful beginning is very very antidote to the tone of the question. Centralized planning was more prominent in the pre-liberation area. Shift towards dynamic planning, multi-year mixed planning with 3-year and 8-year as per the targets of Niti Aayog, reflected through, say for example, यार aspiration district लिख दो, say for example आप लिख दो कि the minor mineral development जो अथॉरिटी है, मिनरल कैसे मिनरल डेवलपमेंट के लिए हमने बनाया है, वो उतना भी चलेगा। वाइडर पार्टिसिपेशन, पीपल थ्रू पार्टिसिपेशन, एनएफएच सर्वे, HCS इनेबलिंग डेटाबेस प्लानिंग एट द ग्रास रूट लेवल, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो लिखना चाहिए था सेकंड वाले में। 73rd 74th गेव वॉइस टू द, ठीक बात है, GVK Rao कमेटी इज अ वंडरफुल पॉइंट। रिस्पॉन्सिव पार्टिसिपेशन एंड गिविंग डिसीजन टू कैपेक्स, एर्रे फॉरेस्ट प्रोटेक्ट। अब आप ये जब लिखते हैं एर्रे फॉरेस्ट प्रोटेस्ट, तो इसका मतलब आप असल में कहना चाह रहे हैं कि एर्रे में अगर बाद में वो बन गया है, जो मेट्रो हाउस बना, तो आप उसके फेवर में नहीं। हमें ऐसा एग्जांपल नहीं देना, बल्कि हमें एग्जांपल देना है जिसके अंदर ट्राइबल के पॉजिटिविटी में कुछ हुआ। जैसे आप एग्जांपल दीजिए, जैसे ट्राइबल का, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप झारखंड के अंदर ट्राइबल्स ने जो प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड जिसकी हमने बात की थी, वो सारा 73rd 74th अमेंडमेंट वाला है। कोई
सेल्फ हेल्प ग्रुप रोटी बना के उसको बेच रहा है, क्या बोलते हैं उसको, लोकल लेवल पे। कोई हैंडीक्राफ्ट्स को बना रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, और उसको वो जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लेके आ गया है। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, यू मस्ट गिव एग्जांपल रेवेन्यू जनरेशन के सोर्स है, जैसे अब म्युनिसिपल बॉन्ड्स आ गए, तो हमें पॉजिटिव लेना है कि भाई जो सरकार ने वो चीज कर दी है। तो आप अगर एरे फॉरेस्ट प्रोटेस्ट लिखते हो तो एग्जामिनर को क्वेश्चन जा रहा है कि यार इसका मतलब कैंडिडेट जो है उसके फेवर में नहीं था, और कैंडिडेट बता रहा है कि प्रोटेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो स्टोर बना बाद में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें अलाइन तो होना ही पड़ेगा। जी प्रिसीजन प्लानिंग इन द फॉर्म ऑफ बजट, फॉर एग्जांपल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो नाम दे दो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, फिर आप नॉर्थ ईस्ट का कोई नाम दे दो साथ में, एक ऐसे डैश लिखते ही बस आप, जैसे कार्बी आंगलोंग या कुछ भी लिख दो, जो भी लिख सकते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल का एक नाम दो, स्पेशल पर्पस व्हीकल फटाफट से आप सोचो, जैसे अब फॉर एग्जांपल एफॉरेस्टेशन के लिए कुछ है, या हमने फिशरमैन्स की लाइवलीहुड के लिए किसी स्टेट ने बना दिया है, जी यू नो। As planning and back-end works get digitized, central role of digital personal data, बिल्कुल सही बात है। थर्ड पार्टी ऑडिट्स, बिल्कुल सही बात है। Therefore, India has shifted from centralized to decentralized planning mode to achieve SG8 decentralized। और इस सारे के अंदर जो है एक दो लाइन जो और आनी चाहिए थी, जिसकी कल भी हमने न्यूज़पेपर जब मैंने जो सेशन किया था उसमें आपने खुद जब आप बात कर रहे, जैसे झारखंड के जो हमारे धरती अब्बा बिरसा मुंडा भगवान की जब बात कर रहे थे, तो अब जो आया है ट्राइबल का जो स्कीम आई है, जो गवर्नमेंट जो स्कीम लेके आई है, उसमें उनको ना सिर्फ मतलब आधार और ये जो राशन और जो आयुष है, ये सारी चीज तो मिल ही रही है, उसके अलावा उनके एम्पावरमेंट की बात है, महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात है। जैसे आपने वहां लखपति दीदी बोला, तो ट्राइबल वुमेन की बात है और ट्राइबल चिल्ड्रन की बात है, तो स्कूल, तो वो एक लाइन आ जाती तो आई थिंक। और एंड में अगर हम लिख देते कि अभी एंड में आपने क्या लिखा है मुझे वो देखना है, देन आई विल से। अच्छा, आपने लिख दिया देयरफॉर इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम, तो अब थोड़ा सा क्योंकि क्रिटिकली इवैल्यूएट बोल रहा है, तो लास्ट में आपको जो बीच बीच में हमें ऑब्स्टेकल बताना है, लास्ट में हमें ऑब्स्टेकल बताना है कि इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बिकॉज अभी भी जो है 70% जो एक्सेस है रिसोर्सेज का वो पेनिट्रेट हो रहा है। अभी क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पे बात हो रही है, हो नहीं पाई है, बाढ़ आती है या बारिश आती है, या जब बात आती है लाइवलीहुड की, जी स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो। बस जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को तो थोड़ा ही है ना। चलिए आगे। हम्म Accelerated growth of literary sector, literary tertiary sector. Accelerated growth of tertiary sector during the past 2 decades in the Indian economy has posed multiple challenges. Very good question. तो challenges बताने हैं, तो इसका मतलब हमें सर्विस सेक्टर को सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं। सर्विस सेक्टर बूम इन इंडिया वाज ब्लेसिंग एट डिस्गाइज, बहुत अच्छा लिखा। दैट इनेबल्ड a successful roll of 1999 LPG reform। उसके बाद आगे भी ले आती, and still it continued the growth phase. It is one driver of masses coming out of multi poverty। वही ड्राइवर है, सर्विस सेक्टर ड्राइवर है, पैसे आए उससे। Past 2 decades and trend, service in ITS and BPO sector has made India the global hub of competitive yet surplus skilled labor destinations as per OECD। Primary services comparative advantage, shift toward quaternary services, consultancy, cyber security, artificial intelligence, quantum, gold atlas jobs। गोल्ड कॉलर जॉब्स। हाँ, गोल्ड कॉलर जॉब्स। ओके, गोल्ड कॉलर जॉब आपने सारा पॉजिटिव बता दिया, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया। लेकिन ठीक है, अब हम देखते हैं कि चैलेंज की क्या बात। चैलेंज ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप ड्यू टू स्टैग्नेशन इन स्किल्स। एक्सटर्नल डिमांड डिपेंडेंट ऑन 70% डिमांड फ्रॉम यूएस सर्विस सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। विल इंडिया मेक सस्टेन मोमेंटम विद सर्विसेज 2.0 ट्रांजिशन इंडस्ट्रीज बीइंग द मेकिंग द सेंटर स्टेट लिमिटेड फाइनेंस एंड फॉलोइंग एफडीआई। अब एक और जो चैलेंज आपको बताना चाहिए था कि इंडिया की जो आईटी सर्विसेज हैं, वो उसको compete करने के लिए वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, वो भी मतलब कि जो आउटसोर्स डेस्टिनेशन है, पहली बात वो भी तैयार हो रहे हैं, वो हुए ही हैं, हमें उन्होंने थोड़ा बहुत उन्होंने हमें भी कम्पीट किया। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया है? दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आईटी सर्विसेज में ये आया है कि ऑब्वियसली जो आपने लिखी दिया है, थोड़ा सा एक्सपेंड हो सकता था कि हम उन पे डिपेंडेंट है। यूरोपियन मार्केट जियो स्ट्रेटेजिक जो टेंशन है, दे विल डिसाइड। अगर वहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें हमारा काम कम हो रहा है हल्का सा। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आया है, या तीसरा चैलेंज आप मान लो, जो आपने लिख भी दिया है शुरू में, कि जो क्वांटम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा सेंटर या जो इवन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो अब हम बना रहे हैं, उसके लिए हमें और पंप इन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्किल्ड जॉब के लिए, R&D के लिए। तो थोड़ा नॉलेज इकोनॉमी वाला पार्ट हल्का सा 10% अगर और आ जाता है इसमें, जो आप चैलेंज पे लिखते हैं, क्योंकि आपने वे हेड में पक्का लिखा होगा, लेट मी सी। नंदन नीलकेनी इन्फोसिस पार्टनरशिप फॉर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, बहुत बढ़िया पॉइंट है। सर्विस टेक डिजिटल इक्वलाइजेशन लेवी टू क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड। सनराइज सेक्टर डेटा सेंटर यूपी
as a hub, GCC will drive the momentum. Therefore, India will be emerging as the core of the Asian century growth. I think wonderfully written as the end. But then जब वो कह रहा है कि चैलेंज, और चैलेंज आप एक और लेके आइए कि जो हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स निकालें। हमें उसके बाद कंपनी को जब उनको स्किल देना पड़ता है ना, तो कंपनी को स्किल देना पड़ता है, तो उसके अंदर जो है टाइम जा रहा है, पहली बात। तो दूसरा, कंपनी को सूटेबल स्किल नहीं मिलती जो नेक्स्ट स्किल है। तो R&D पे फोकस थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा इनोवेशन पे कर दीजिए, यही चैलेंज रहे। बाकी हमारे यहाँ मार्केट का कोई चैलेंज नहीं रहा। हमारे यहाँ सेबी या स्टॉक शेयर में जो लिस्टेड है ब्लू चिप कंपनीज हैं, दे हैव बीन अमेजिंग। हमारे यहाँ कोई कमी, बेंगलुरु है, पुणे है, हैदराबाद है, टियर 2 टियर 3 सिटीज भी हब बने। तो थोड़ा सा बस ये वाला एलिमेंट आने से आई थिंक आंसर और थोड़ा सा सुटेबल। सो व्हाट आर योर टेक अवेज इन वेरी ब्रीफ? सो फर्स्टली जैसे क्रोनिक कैपिटलिज्म वाले क्वेश्चन में जो एग्जांपल्स हैं वो मैं जब लिख रही थी तो मेरे को लग रहा था, बट फिर मैंने लिख दिया कि वो आगे डिस्कस हो जाएगा। तो वही जो पास्ट में हो चुका है, कंक्रीट केसेस है, बस उन्हीं को एज एन एग्जांपल साइट करना है। एंड और थोड़ा सा प्रिसिशन से एक दो पॉइंट जो आपने बोले वो ऐड होने चाहिए, तो थोड़ा बिल्कुल, हम वी आर वर्किंग ऑन इट, जो बट आई मस्ट से बड़े वी आर एरियाज, फार। बड़े बोलो बड़े एरियाज जो एरियाज। इमर्ज हो रहे हैं उसी पे फोकस करना है जो फंडामेंटल है। नहीं, मेरा टेक अवे ये है, अगर हम पहले की कंक्रीट जो पूरी की पूरी सीरीज जो हमारी चल के हमने जो अब तक का लेवल रेज किया, मेरा कहना ये है कि वी हैव रीच्ड अ न्यू स्टेज, answers are settling down, a kind of confidence I can see especially in the introduction that had been very very charming point for me। और लाइट हो रहा है, सेंटेंसेस सिंपल हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डेटा भी आने लगा है। और वो जो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो जो जो स्क्रू टाइट अभी और होगा। तो वी विल कंटिन्यू विद द सेम इंटेंसिटी एंड सेम अलर्टनेस एंड कंसिस्टेंसी, एंड बिहाइंड द सीन जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं उस सबको हम आगे लेके आएंगे, ताकि वी आर हैप्पी and we are confident and we are content at the same time when we are writing the examination. जी With सर। these ideas, thank you very much. Let's try to do our best under all circumstances, because that has been the endeavor for one and all at Ansarkari.